ठीक है, we were discussing about the ports, right? Priyanshu, what we did in ports? Concurrent plus different differentiations we did. What was the basis of differentiation? मतलब we divided in different type parts ना. So first I wrote the basis. हाँ, वो किस बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया था? इनलैंड याद आपको, कमर्शियल रहा है बट हेडिंग नहीं याद. एंड व्हाट एल्स? पोर्ट्स इनलैंड, 3 टाइप के पोर्ट्स, इनलैंड एंड व्हाट, ये तो जब एग्जांपल्स देख लिखो, मैंने डिफरेंशिएट करके लिखवाया था. देखो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कौन कौन से. सो वो हैव यू रिटन और नॉट? स्पीक इट अप. ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडलिंग there was a commercial, comprehensive, 3 types majorly na. And what else? Next demarcation was there, division. And रौनक आप बताओ, on the basis of specialization ports बताओ आप. On the basis of specialization ना, there was this also. इसमें हमने 4-5 कैटेगरीज की थी. What was that? बताइए. एक तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडलिंग किया, 3 टाइप्स वी डिड, राइट. एंड नेक्स्ट अनदर वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और स्पेशलाइजेशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोर्ट्स? नेम यू टेल 2. नेवल पोर्ट है, आई डिडंट सेड मिलिट्री पोर्ट. हाँ, एंड ओके, एंड एल्स जस्ट रैंडम यू आर सेइंग. प्रज्ञा आप बताओ तो ना. ऑयल पोर्ट्स वर देयर, राइट. पोर्ट्स ऑफ कॉल पढ़ा था, एंड एंट्री पोर्ट. और निशा आप रिपीट करो, नोट से देख के रिपीट करो एक बार, सारे रिपीट करो एक बार. रिवाइज करके नहीं आते हो आप लोग हैं क्लास में बिना रिवीजन. एक बार रिपीट करो निशा सारे. Package stations, okay? Is this clear? And what else we did after this? After the ports, then what else we did? Import and export का scenario of India we studied. Scenario of India trade के relations में हमने देखा था कहाँ सबसे ज़्यादा import होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा export होता है ना. Major destinations we looked at the major destinations, right? तो एक बार जरूर go through जाया करो notes के, ठीक है, revision पर. आज हम देखेंगे government initiative. You understood what is the importance of port? Is important for trade perspective, is not? Is important or not? Economic development, GDP के लिए, geopolitics के लिए important है. Now what are the government initiatives? Government initiatives, ठीक है, with respect to port development, ठीक है. I'm dictating you. Write down first point. What are the specific government initiatives or government projects that are working for the improvement of the ports in India? Okay. First one you write in 2020. Write down in 2020 the Ministry of Shipping. In 2020 the Ministry of Shipping was renamed as the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. सिर्फ पहले सिर्फ शिपिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता था. Earlier it was only Ministry of Shipping, but it was changed to Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Ports, Shipping and Waterways. This in short I have written, you write in full. Okay. Ministry of Ports, Commerce, Shipping and Waterways. मतलब it will cater to all the 3 aspects. It will look after the ports also, it will look after the shipping also and waterways. How to develop, what areas to develop. Okay. ठीक है. Next point, second, in 2021 Major Ports Authorities Bill. Second one, in 2021
In 2021, the Major Ports Authorities Bill 2022 was passed by the Parliament. Full stop. It aims to decentralize decision making. It aims to decentralize decision making and reinforce excellence in major port governance. Write down third one. Third point, the government of India allows 100% FDI. FDI means foreign direct investment. ठीक है, 100% FDI under the automatic route for port development projects. Now next, fourth, Project Unnati. Project Unnati, UNNATI. Project Unnati was launched to benchmark the operational and financial performance of the 12 major ports. Write down Project Sagarmala. आपने लिखा. Right. Next one, Project Sagarmala. सागरमाला सुना था वर्ड? This was specifically for the port development. ठीक है, सागरमाला. इसके लिए लिखो, इसके आगे लिखना, इसको हेडिंग ऐसे बना के mark and write in front of this. I will tell you 2-3 points. ठीक है, चलो. It is a flagship. This is important. Okay, that's why I am making you to write it separately. ठीक है, हाँ. It is a flagship central sector scheme. Sagarmala project, flagship central sector scheme of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Next point, it aims to foster port-led development in India. ठीक है. Third point, the Union Cabinet approved the concept of Sagarmala. The Union Cabinet approved the concept of Sagarmala in 2015. कब आया था ये? In 2015. The vision is to reduce domestic and EXIM cargo, EXIM, EXIM cargo, export import, net export and import. ठीक है, EXIM cargo logistic cost
logistic cost with optimized infrastructure investment. The 5 pillars, इसके कितने पिलर्स है? 5 पिलर्स, ठीक है। Write down. The 5 pillars of Sagarmala project are, the 5 pillars of Sagarmala project are, पहला port modernization, first port modernization and new port development. I am dictating you the 5 pillars, okay? First one is port modernization and new port development. Second, port connectivity enhancement. Second, port connectivity enhancement. Third one, port-led industrialization. Fourth, coastal community development. Fourth is coastal community development. Coastal community development, fourth. Fifth, coastal shipping and inland water transport. Okay, is it clear? 5 all the points. Priyanshi, repeat all the 5 pillars. Can you repeat? Okay. Okay, this was a major project that government started. अच्छा, central sector and central sponsored में अंतर पता है? If a project is central sector, एक word आता है ना, central sector scheme and central sponsored. These are the two words. किसी भी स्कीम के सामने 2 words लिखे थे, central sector scheme and central sponsored. Do you know Subho? What is the difference? नहीं? Not 50-50, it's not fixed 50-50, but here the participation is there between center and the state. It may be the ratio may be 50:50, or with the जो special states होते हैं, it may be 70:30, it may be 90:10%. ओके, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड होता है, मतलब कुछ ऐसा सेंटर करता है, कुछ क्या स्टेट मिलके करते हैं, दोनों मिलके। सेंटर सेक्टर मतलब स्पेसिफिकली क्या है, सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, होलिस्टिकली। फ्लैगशिप स्कीम्स होती है जो गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे स्टार्ट करती है, ठीक है। ये वर्ड डिफरेंस याद रखना, जब आप स्कीम्स पढ़ोगे बहुत सारे, तो उसमें कहीं पे सेंटर सेक्टर स्कीम होगा, कहीं पे सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, ठीक है, ये 2 वर्ड अलग अलग। ओके, चलो इसके नाउ नेक्स्ट वन मोर पॉइंट आफ्टर 5 rate 6 लास्ट पॉइंट। 6 mega ports, 6 mega, no, that 5 pillars are complete. So 5 pillars are complete. Now this 6th point here I am telling you 6th point. Okay, 5 pillars तो complete हो गए ना, उसके बाद यहाँ पे जो हम points लिख रहे थे उसमें 6th point, ठीक है। 6 mega ports are planned under the Sagarmala project. ठीक है, 6 कौन से मेगा पोर्ट्स है? पहला है राइट डाउन, फर्स्ट इन केरला, ठीक है, VIZHIN है बीच में, Jam International Port, it is seaport, it is in Kerala, okay. I am repeating, VIZHINJM,
विजिंजम करके पोर्ट है, ठीक है, दैट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ मेगा। हमने मेजर पोर्ट्स पढ़े थे, मेजर माइनर पोर्ट, बट अंडर द सागरमाला 6 मेगा पोर्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड। ओके, सो दिस फर्स्ट वन इज इन केरला, सेकेंड वन इन तमिलनाडु, यू राइट, कोलेचल। कोलेचल, COLACHEL, कोलेचल seaport in, this is in Tamil Nadu. Third one, Vadhavan Port. Vadhavan Port, this is in Maharashtra. Tadadi Port, this is in Karnataka, this is in Maharashtra, Tadadi. Fifth one, Machilipatnam in Andhra. मछलीपट्टनम, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम, ठीक है। सिक्स्थ वन, सागर आइलैंड पोर्ट, सिक्स्थ। सागर आइलैंड कहाँ है? हमने इंडिया में मार्क किया था एक छोटा सा सागर, वेस्ट बंगाल, सागर। सो दीज आर द 6 मेगा पोर्ट्स। मेगा पोर्ट्स अंडर प्रोजेक्ट सागरमाला। इज इट क्लियर? चलो, इसके अलावा एक और चीज हो रही है, पीएम गति शक्ति। हैव यू हर्ड दिस अनाउंसमेंट ऑफ पीएम गति शक्ति? अब इसमें क्या है, ये लॉन्च किया गया था पीएम जब स्कीम फाइनेंशियल 25 के लिए। यहाँ पे क्या, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स 16 मिनिस्ट्रीज को कोलैब। अब आपको पता है कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे रेलवेज बन रहा है, कहीं पे एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो देयर इज अ नीड फॉर कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क करने चाहिए। तो सारे को कोलैब करके व्हाट ये डन, कोलैबोरेशन ऑफ 16 मिनिस्ट्रीज टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी रीजन को ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, रोड वहां पे बननी चाहिए ताकि वहां पे व्हीकल कम्यूट कर पाए। आप गांव से शहर आ पाओ तभी तो आप शहर तक पहुंच पाए ना, अगर कनेक्टिविटी नहीं होती है ना, तो आप कैसे शहर तक आते। सो फर्स्ट स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी एरिया इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो करंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दी स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। उसी के अंडर ये पीएम गति शक्ति लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है, रोडवेज कैपेसिटी टू बी इंक्रीज, रोडवेज को बढ़ाएंगे, रेलवेज ट्रांसपोर्ट का रेलवेज को भी इंक्रीज करेंगे, कार्गोज विल बी इंक्रीज, देन रिन्यूएबल कैपेसिटी, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो। सो ऑल द सेक्टर्स कोलैबोरेटिवली विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, सो ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें काफी सारे मिनिस्ट्रीज है, काफी सारे छोटे छोटे प्लान्स लॉन्च होंगे। ओके, सो रिमेंबर दिस नेम, PM Gati Shakti. Write down one more scheme. We are doing the schemes for the government initiative, right? In that, another initiative you write PM Gati Shakti. National Master Plan for Multimodal. Multimodal word का मतलब समझ में आता है? Multimodal connectivity means different modes, rates, railways, roadways, airports, inland waterways. Multimodal मतलब multi modes of transportation we are using and we are connecting them together. ठीक है? So this is also important for development of seaports and all. ठीक है? अब यहाँ पे around airports, heliports, water aerodromes डेवलप होंगे, ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा, 4G कनेक्टिविटी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट विल लुक आफ्टर ऑल द रोडवेज, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंटरनेट एंड एनर्जी। ठीक है, 2 साल पहले ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ वेरियस लाइक भारतमाला भी आपने सुना होगा, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज एंड उड़ान स्कीम, ठीक है। ये सारे इन सबको एक जैसे अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं ना किसी चीज को कि दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम, तो उसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स और प्लान्स लॉन्च होते हैं, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस नेम, PM Gati Shakti, National Master Plan for Multimodal Connectivity.
ओके, दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, नाउ आफ्टर पोर्ट्स एंड ऑल वी विल मूव टुवर्ड्स द रेलवेज। थोड़ा सा रेलवेज, हैव यू रिटन दिस हेडिंग, यू हैव रिटन? चलो 2 लाइन आप लिख लो, एटलीस्ट लिख लो, आपको लिख रहा है इफ यू वांट टू राइट। Always remember this, you remember 16 ministries are brought together, ठीक है? How many ministries will be working together? 16 ministries, okay? Written? Now whenever the question will come with respect to गति शक्ति या सागरमाला, क्लियर है किससे रिलेटेड है वो चीज, ठीक है? स्कीम इज सागरमाला इज रिलेटेड टू पोर्ट डेवलपमेंट, ओके? इट इज अ गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वी विल लुक एट दी रेलवेज, ठीक है? Railways means nothing much, but one thing you will have to remember, we studied railways क्या इंडिया में लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज है कि नहीं वर्ल्ड के, ठीक है? देयर आर 3 कैटेगरीज, गॉजेस आपने सुने, रेलवे गॉजेस सुने, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गॉजेस आते हैं, ठीक है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है? तो या फिर स्मॉलर गेज उसको कहते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले ब्रॉड गेज होता है, सेकेंड वन इज meter, another one is small or narrow. Have you seen the railway tracks? हमेशा पैरेलल में चलते हैं ना रेलवे ट्रैक्स, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइन, उसको हम गॉज कहते हैं कि कितना, ठीक है? गेटिंग तो ब्रॉड गेज में इट इज 1.6 मीटर, ठीक है? इट इज अराउंड 1.6 मीटर दैट यू रिमेंबर, और यू कैन रिमेंबर लाइक मोर देन, इट कुड बी मोर देन 1.5 मीटर, ठीक है? डिस्टेंस इज मोर देन 1.5 मीटर। इन स्टैंडर्ड और मीटर को इट इज अ स्टैंडर्ड गॉज, मीटर गॉज में कितना होगा? 1 मीटर, ठीक है? नैरो स्मॉल में इट विल बी लेस देन 1 मीटर, ओके? ठीक है? रेलवेज आर ऑल्सो, अब तो क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवेज वगैरह के लिए, फास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं, बुलेट ट्रेन ये सब डेवलप हो रहे हैं ना। रेलवेज को क्या हम इलेक्ट्रिफाइड कर रहे हैं, सो दैट कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन गेट्स रिड्यूस, ओके? इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज अगर मैं कहती हूँ, एक और वर्ड आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, What does means transcontinental means from one nation to other, ठीक है? एक नेशन से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। पहले बहुत लंबी लंबी रेलवे चलती थी, तो दे हैड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मूवमेंट ऑफ द गुड, मूवमेंट ऑफ द फ्रेट एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑल्सो, ठीक है? सो इंपॉर्टेंट रेल रोड्स।
द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ रेलवे नेटवर्क फ्रॉम एक से दूसरे छोर तक जाती है मूवमेंट। यहाँ पे क्या था, यहाँ से लेके ट्रेन चलती है, रेलवे चलती हैं, और वो कहाँ तक जा रही है, पूरी यूरोप को कवर करती हुई जा रही है। तो दे आर कॉल्ड ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, और रेलवे नेटवर्क भी ये डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये सारे आपको एनसीईआरटी में कुछ कुछ ट्रांस साइबेरियन दे रखा है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार करके रीड कर लो, कि कभी कभार बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो एक बार जरूर स्टडी कर लेना। ठीक है, तो ये कहाँ से लोकेशन जरूर याद रखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है। ओके, ठीक है, अब रिलेवेंट उतना नहीं आता, यूपीएससी में बहुत कम पूछा जाता है इसके बारे में, क्योंकि अब हम और चीज़ों, सागरमाला, भारतमाला, इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग क्या, ये क्या है, कोमशोला। यहाँ पे ये क्या, व्लादिवोस्तोक, देखोगे रशिया का व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो है, वेरी फेमस। ठीक है, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी व्लादिवोस्तोक। ये कहाँ, साइबेरिया रीजन, मतलब रशिया से होते हुए कहाँ, यूरोप तक जा रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, सेंट पीटर्स। तो ये दो लोकेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवेज है, रोडवेज है, तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, दैट इज गोइंग फ्रॉम व्लादिवोस्तोक टू दिस सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इसके आसपास यहाँ पे मॉस्को है, यहाँ पे ओम्स है, सो दिस नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांस और इम्पोर्टेंट जो चलती है, ट्रांस कैनेडियन रेल रोड, तो ये भी क्या है, आप देखोगे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कैन यू सी, दिस इज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, सो दिस ट्रांसपोर्टेशन इज फ्रॉम हियर सिडनी, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। ओके, तो यूएसए होते होते ओटावा, मॉन्ट्रियल, इंपॉर्टेंट लोकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेल रोड, ये जा रही है, तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी ना हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मिनरल रिच रीजन्स वर देयर और नॉट, शील वाज देयर, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट होती थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओटावा, मॉन्ट्रियल में मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग। यहाँ पे न्यूयॉर्क आप देखोगे, ये हेलिफैक्स वाला रीजन है, मॉन्ट्रियल है, सो दीज आर वेरी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्स, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन। सो व्हाट हैपेंस, द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू कनाडा आल्सो, एंड दिस वैंकूवर एंड विक्टोरिया, दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस। ठीक है, तो ये लोकेशंस कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। विनिपेग, गेटिंग, आप एक एक नाम लिखो। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में फर्स्ट थिंग यू राइट ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, राइट डाउन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में व्हाट यू विल हैव टू रीड इज फर्स्ट वन ट्रांस साइबेरियन रेलवेज रिटन, नेक्स्ट ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, थर्ड द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे, द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे, ये किसके बीच में, दिस इज बिटवीन न्यूयॉर्क एंड द सैन फ्रांसिस्को, द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवेज। देन ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ओके, राइट डाउन अनदर एक पैराग्राफ आप लिखो। इन इंडिया हैज दी फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम India has the fourth largest railway system globally, following the US, Russia, and China. Next line, in Asia, the rail network is the densest. In Asia, the rail network is densest in the thickly populated areas of Japan, China, and India. Have you understood what you will read? Trans-Siberian Railroad के बारे में you will study. Okay, then you will study about this Trans-Canadian Railroad, getting the location where they are located. ठीक है, on the map NCERT में देखना, ऐसा ही मैप दे रखा है. ठीक है, next you will study about Australian Trans-Continental Railways. ओके, अच्छा सी रूट तो हमने इंपॉर्टेंट सी रूट देखे थे. ठीक है, मैरीटाइम रूट हमने क्या यहाँ पे देखा था, अटलांटिक ओशन में सी रूट देखा था. देन वी लुक्ड एट द मेडिटेरियन सी रूट टू इंडिया. ओके, सो इंपॉर्टेंट मेजर सी रूट्स हैं जो हमने सी पोर्ट्स के टाइम पे देखा था. ठीक है, इसमें कुछ इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक लोकेशन आप मैप में देखना कि हाँ कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, जस्ट हैव अ लुक कि सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पे, रोड्स कहाँ पे,
स्ट्रैटेजिक है, यहाँ पे चोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होते हैं ये, ठीक है। ओके, सो दैट्स हाउ यू विल हैव टू स्टडी। ओके, नाउ नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटरवेज, ये क्या है, राइन वाटरवे, ठीक है। राइन मतलब जब वाटर रिवर्स के थ्रू, हमने पढ़ा था ना इनलैंड वाटरवे, व्हाट वाज इनलैंड वाटरवे, थ्रू रिवर्स विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशंस एंड ऑल। सो एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है राइन। राइन रिवर वी हैव स्टडीड और नॉट, ये राइन रिवर देखा था, काफी सारे रिवर्स से मिलती हुई, ये फाइनली राइन कहाँ पे जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ, यूरोप की रिवर है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कमर्शियल गुड्स यहाँ पे ग्रो होते हैं, है कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड, सो दिस इनलैंड वाटर सिस्टम हेल्प देम टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, यहाँ से डायरेक्टली वो ओशन पे लेके गए, ठीक है, ओशन से फिर दे वर ट्रांसपोर्टिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बिकॉज इनलैंड वाटरवे इज द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ओके, एंड ऑल्सो इट इज नॉट वेरी पॉल्यूटिंग, इट इज इको फ्रेंडली ऑल्सो, ओके। सो दिस वन एग्जाम्पल, ये सब आप कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल में आप डालोगे, ठीक है, जैसे राइन वाटरवे का आप एग्जाम्पल डालोगे कि इफिशिएंटली इट इज वर्किंग इन द यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से जुड़ रहा है कि नहीं, आप देखो डिफरेंट कंट्रीज को वो कनेक्ट करते हुए, ऐसे बहुत सारे ओप, निस्तुला, हमने बहुत सारे रिवर्स पढ़ी थी, सो दे ऑल्सो हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द रीजन टू द अदर, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और है, दिस इज विच रीजन, समझ में आ रहा है कौन सा वाला पार्ट है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे भी हमने ये बहुत जगह, मिसिसिपी ये था, सेंट लुइस, यहाँ पे हमने क्या देखा था, सेंट लॉरेंस देखा था, ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ पे हमने लेक्स देखे थे, सुपीरियर लेक, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। तो यहाँ पे देखो टोरंटो है, ओटावा है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं, ठीक है। सो इसी से क्या डायरेक्टली वो वाटर के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए इनका कॉस्ट कम आता है, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लोकेशंस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखोगे डिट्रॉइट, क्लीवलैंड, ओटावा, टोरंटो, ये सब बहुत ही डेवलप्ड प्लेसेस हैं यूएसए में भी और कनाडा के। वाई? बिकॉज यहाँ पे इजी प्रोडक्शन है, इजी रिसोर्स अवेलेबल है, एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। डायरेक्टली दे कैन रीच टू दी ओशंस, और यहाँ से डायरेक्टली दे कैन ट्रेड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड। गेटिंग द रेलेवेंस ऑफ इंडियन वाटरवेज, और दैट्स व्हाई इंडिया जो गंगा रिवर है, गंगा पे क्रूज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन वाटरवे डेवलप करने, नेशनल वाटरवेज डेवलप होते हैं, वो क्यों? ताकि हम इफिशिएंटली गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है, विद इन दी लैंड बॉर्डर्स, ओके, इज इट क्लियर? चलो, नाउ वी विल लुक एट दी रोडवेज। रोडवेज के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा याद आता है, कभी पढ़ा है कोई? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट, उसमें व्हाट वी डिड इन दैट, कनेक्ट किया था, ठीक है, अपने जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी। अच्छा, लिखो हेडिंग, राइट, रोडवेज, रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, राइट डाउन। India has the second largest road transport in India. India has the second largest road network in the world. About 85% of passenger, and 70% of freight traffic, freight means FRIEGST, goods, freight traffic are carried by roads every year. Roads are classified as how